صحیح بات نہیں ہے؟ نہیں، کیا کر رہے ہو بیٹا؟ لا حول ولا قوت، پھینک کے نہیں دیتے پانی. چلیے نکلیے بیٹا یہاں سے، نکلیے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. یہاں سے ہٹیے، یہاں سے ہٹیے، یہاں سے ہٹیے، صحیح نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پیچھے چلیے، پیچھے چلیے، پیچھے چلیے. سبحان اللہ. پیچھے چلیے، پیچھے چلیے، پیچھے چلیے، پیچھے چلیے. باہر کی طرف جائیے، باہر کی طرف جائیے، پیچھے کی طرف جائیے، پیچھے کی طرف جائیے. ہر جگہ LCD اسکرین لگی ہوئی ہے. پیچھے کی طرف چلیے، پیچھے کی طرف چلیے، پیچھے جائیے، پیچھے جائیے. چھاؤں میں جا رہے ہیں، چھاؤں میں. سب لوگ بیٹھ جائیے، بیٹھیے، آپ سب لوگ کو بیٹھنا ہوگا. آپ بیٹھ جائیے، پہلے آپ بیٹھیے، سب بیٹھیے. کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بیٹھ جائیے بیٹا، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے. سب لوگ بیٹھ جائیے، بیٹھیے، بیٹھیے، آپ بیٹھیے، آپ بیٹھیے، آپ بیٹھیے، آپ سب بیٹھ جائیے. بیٹھیے، بیٹھے بغیر کام نہیں چلے گا، بیٹھے بغیر کام نہیں چلے گا. نہیں بیٹا، آپ لوگ باہر نکلیے، سب لوگ، آپ لوگ کو جانا پڑے گا. یہ سیکیورٹی ایریا ہے، یہ سیکیورٹی ایریا ہے، آپ کو یہاں جانا پڑے گا. خالی ہوئیے یہاں سے، خالی ہوئیے، خالی ہوئیے یہاں سے. اس ایریا کو خالی کرنا پڑے گا، اس ایریا کو خالی کرنا پڑے گا. یہ صحیح بات نہیں ہے. خالی کروائیے، پیچھے چلیے، پیچھے چلیے. پروگرام چلنے دیا جائے گی، جان چلی جائے گی. گرمی بھی ہو گئی ہے، لوگ پریشان ہیں. خاموشی سے سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں آگے اپنی بات رکھ رہا ہوں. میرے عزیزوں، وقت ایک مقدس امانت ہے جو صدیوں سے ہمارے آبا و اجداد نے اللہ کی رضا کے لیے مسجدوں، مدرسوں، خانقاہوں، یتیم خانوں، درگاہوں اور عوامی فلاح کے اداروں کے لیے وقف کی تھی. یہ جائیدادیں کسی فرد کی ملکیت نہیں بلکہ اللہ کی امانت ہیں، اور ان پر قبضہ کرنا صرف قانون شکنی ہے ہی نہیں، دینی خیانت بھی ہے. لیکن آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ملک بھر میں وقف جائیدادوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. انہیں ناجائز طریقوں سے ہتھیانے کے لیے ان پر غیر شرعی، غیر آئینی قوانین تھوپے جا رہے ہیں اور ہماری خاموشی کو کمزوری سمجھا جا رہا ہے. میرے عزیز بھائیوں، خاموش رہنا اب مجرمانہ غفلت ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر آج ہم نے زبان نہ کھولی، اگر ہم نے آج بھی صرف تماشائی بن کر جلسے سننے پر اکتفا کیا، تو کل ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، خانقاہیں اور قبرستان تک محفوظ نہ رہیں گے. یاد رکھو، یہ صرف وقت کی لڑائی نہیں، یہ دستور ہند کی روح کی حفاظت کی لڑائی ہے، یہ مذہبی آزادی کی بقا کی لڑائی ہے، کالے قانون کے خلاف لڑائی ہے. یہ اقلیتوں کی آئینی حقوق کو بچانے کی لڑائی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ امت مسلمہ کی غیرت کی لڑائی ہے. ہم حکومت ہند سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، یہ متنازع وقف قانون کو واپس لیا جائے، تمام ریاستوں میں وقف جائیدادوں پر ناجائز قبضے روکے جائیں اور اصل وارثین کو ان کا حق واپس دیا جائے. ساتھ ہی ہم اپنے علماء،
रहनुमाओं, तलबा, नौजवानों और ख़वातीन से भी अपील करते हैं कि वो बेदार हों और पुरअमन जमहूरी तरीके से आवाज़ बुलंद करें। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आज भी हम ना जागे तो फिर कब जागेंगे? अगर आज भी हम ना बोले तो फिर कौन बोलेगा? अगर हमने अपनी अमानत न बचाई तो कल हमारी नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। आइए अहद करें कि हम अपने दीन, अपनी शनाख्त, अपने हुकूक और अपने वक्त की हिफाजत करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। हज़रात गिरामी, अब आपके सामने एक ऐसे मुकर्रिर को पेश करना चाहता हूँ जो इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा व झारखंड के नायब नाजिम हैं और मुल्क के बड़े नामवर खतीब भी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इफ़ाम व तफ़हीम का बड़ा मलका इनायत फरमाया है। मेरी मुराद इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा व झारखंड के नायब नाजिम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सोहराब नदवी कासमी दामत बरकातुम से हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और हमारे दरमियान अपनी खिताब से हम तमाम सामीन को मुस्तफ़ीद होने का मौका इनायत फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई आप लोग जो लोग फिर खड़े हो गए हैं, आप लोग कुछ तो कम से कम अपनी खैरत को जगाइए, अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आपके अमीर आपसे कह रहे हैं, आपके अमीर आपसे कह रहे हैं कि बैठ जाइए। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। मोहतरम हाज़रीन किराम, आज की ये कॉन्फ्रेंस इमारत शरिया के बैनर तले मुनाकिद हो रही है। याद रखिए, इमारत शरिया और अमीर शरीयत, जब तक हमारा मजबूत एतमाद इमारत शरिया और अपने अमीर शरीयत पर नहीं होगा, उस वक्त तक हम किसी तहरीक को कामयाबी से हमकिनार नहीं कर सकते। ये फोटो वाला, ये फोटो वाला, आपको अब ये जोश दिलाना है। हम लोग नहीं कर सकते। ये इमारत शरिया वो कुतुबनुमा है जिससे हमारी मिल्लत अपनी समत मुतय्यर करती है और इसके जरिए से सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के मुसलमान रहनुमाई हासिल करते। आपको तारीख का वो दिन याद होगा जब अफ्रीका आज़ाद हुआ था और वहाँ इस्लामी कानून साजी की ज़रूरत थी, तो इमारत शरिया की चटाई पर बैठने वाले हजरत मौलाना कादी मुजाहिदुल इस्लाम साहब अफ्रीका तशरीफ ले गए और वहाँ जाकर कानून साजी की खिदमत अंजाम दी थी। सन 1921 से लेकर आज तक पूरे हिंदुस्तान में और दुनिया के किसी कोने में अगर इस्लाम के खिलाफ कोई आवाज़ उठी, किसी ने नामूस रिसालत पे उंगली रखी, किसी ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के शरीयत को छेड़ने की कोशिश की, तो इमारत शरिया की चटाई है जिस पर बैठने वाले बुजुर्गों ने पूरी कुव्वत ईमानी के साथ इन फितरों का मुकाबला किया है। चाहे 1967 का मुतबन्ना बिल हो, चाहे साबानो केस का मसला हो, चाहे राइट टू एजुकेशन का मसला हो, चाहे 2013 में वक्फ बिल का मसला हो, इनकम टैक्स का मसला हो, याद रखो पूरी ताकत और तवानाई के साथ, चाहे मामला यूसीसी का हो, चाहे मामला एनआरसी का हो, जब भी इस्लाम के खिलाफ, मिल्लत के खिलाफ, मजहब के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ कोई भी आवाज उठाने की जुर्रत किया तो इमारत शरिया की चटाई है जिसने पूरी जुर्रत के साथ उसका मुकाबला किया। आज वही ताकत है जिसने आपको इस मैदान में इकट्ठा किया है। आप पूरी ताकत के साथ कहो कि इमारत शरिया पे हमारा एतबार जिंदा है, अमीर शरीयत आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। ये कुव्वत ईमानी, ये जज्बा ईमानी अगर आप में मौजूद है तो तहरीक कामयाब है। वक्त का काला कानून वापिस होगा,
सुप्रीम कोर्ट से भी इंसाफ मिलने की पूरी उम्मीद है। और जो लोग यहाँ आज तपती हुई धूप में जमा है, मेरा यकीन है कि आपके ये पसीने जाए नहीं जाएंगे, आपके आंख के आंसू के कतरे जाए नहीं जाएंगे, आपके दिल से निकलने वाली दुआ वो जाए नहीं जाएगी और एक इनकलाब की शक्ल इंशाअल्लाह जरूर लेगी। आपके सामने आपके अमीर शरीयत मुफक्किर मिल्लत जो खानका रहमानी मुंगेर की चटाई के सद्दे में नशी और इमारत शरिया के अमीर शरीयत हैं, जलवा अफरोज हैं, आज उनकी एक आवाज पर बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल आज इस तपती हुई धूप पे जिस तरह जमा है, वो इस बात की शहादत है कि आप पूरी मजबूती के साथ अपने अमीर की क़यादत में चलने को तैयार है। और इंशाअल्लाह जब तक सांस चल रही है हम अमीर शरीयत के पीछे चलते रहेंगे। आपके अमीर शरीयत हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद वली अहमद वली फैसल रहमानी अभी आपको इमारत की गद्दी पर बैठे हुए 3 साल नहीं हुए। आप यकीन मानो हमारे जितने उमराए शरीयत गुजरे हैं सबों ने इमारत की हिफाजत की, सबों ने इमारत को तरक्की दिया, लेकिन आपके मौजूदा अमीर शरीयत से सिर्फ चंद सालों में इमारत शरिया के शोबे तबलीग में मुबल्लिगीन का जो इजाफा किया, स्कूलों की तादाद में जो इजाफा किया, मकतब के तादाद में जो इजाफा किया, बेवाओं के वजीफा में जो इजाफा किया और इमारत शरिया के 8 करोड़ के बैतुल माल के बजट को आज 13-14 करोड़ तक पहुंचाकर आज इस मिल्लत की अमानत की हिफाजत का हक अदा किया। याद रखो ये आपके वो अमीर हैं, ये वो आपके अमीर हैं, ये सज्जादे मुंगेर के चानशी और उमराई शरीयत के गद्दी नशी है। आपकी जिम्मेदारी है कि पूरी कुव्वत ईमानी के साथ आज के बाद भी हाथ उठाकर अहद करो कि जब अमीर शरीयत आवाज देंगे इंशाअल्लाह पूरी कुव्वत ईमानी के साथ तैयार निकलेंगे। अल्लाह ताला इमारत शरिया की हिफाजत फरमाए, आपकी हिफाजत फरमाए, आपके अमीर की हिफाजत फरमाए और इस कारवा को पूरी कुव्वत के साथ आगे बढ़ते रहने के लिए कबूल फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउ। अब मैं गुजारिश करूंगा नौजवान बैठ जाइए, आप लोग तशरीफ रखें, बैठ जाइए। अब मैं गुजारिश करूंगा उम्मीद ग्लोबल स्कूल कोलकाता के डायरेक्टर और बड़े मशहूर तालीमी खिदमात अंजाम देने वाले नौजवान